we are taking care of your studies. Okay, so 11th common students, business studies. In business studies, what we have done, we have started with the first chapter, nature and purpose of business, and that we have already done the definition of business. बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ लिया. अब कोई भी आपको पूछे कि मतलब कॉमर्स क्यों लेना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस का मीनिंग आप उसे डिफाइन कर पाओगे कि बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किए जाते हैं फॉर द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. So business is an economic activity which involves production or processing of goods and services with the main aim of earning profit. Okay, this definition of business we have already done, and we have also done features of the business. It is an economic activity. It involves production and sale of goods and services. Dealing on goods and services should be on a regular basis. Profit is the main aim. Then uncertainty of the returns are there, risk is there, element of risk is present in the business. Risk means which type of risk, whether you will earn profit or loss. Okay, you cannot pre-identify that. The last video we have done the comparison of different economic activities. Economic activities were basically classified into business, profession and employment, and in the last lecture we have completed the comparison chart between these three economic activities. Now what today we are going to do? In today's video we will do the classification of business activity. पहले वाले चार्ट के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया था. आप अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए. फॉर लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की थी. सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन किया था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर. ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस तो का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. This is little bit faster. Today just we will have a brief review how it is classified, and in detail we will able to study only in our next video. ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस चार्ट को मेमोराइज कर लीजिए, और ये अगर आपको याद है तो दिस आंसर इज ऑन योर टिप्स. चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस के को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है. बिजनेस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बिजनेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स. इंडस्ट्री मींस फॉर एवरी नाउ एंड देन वी हियर द वर्ड इंडस्ट्री. Industry is what? It is a place of production where raw material are converted into finished goods. मतलब कोई भी आपको पूछे कि इंडस्ट्री क्या है, तो आपकी जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरी ऑन होती है वो क्या है? इंडस्ट्री है. जहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल होता है वो क्या है? इंडस्ट्री है. तो साफ शब्दों के अंदर हम इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई करेंगे? इंडस्ट्री क्या है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जहां पर रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. Where raw material are converted into finished goods ready to consumption, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं. ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर मशीन्स को यूज करके, अदर टेक्निकल टेक्नोलॉजीज को यूज करके, आजकल हम लोग मशीन्स को यूज करते हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. इज इट क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इज अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. In detail we will study. I have already told
place of production or processing of the goods where raw material are converted into the finished goods or final goods. Final goods वो goods होते हैं which are ready to use or ready for consumption. Okay. Now what do you mean by commerce? Commerce का मतलब क्या है? Commerce एक सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने लिया है ना, आपके जहन में ये आया, yes, I have taken commerce. Now what does here the word commerce means? Here the commerce means that it involves all those activities which facilitates the trade. Commerce के अंदर वो सारी activities included होती है. It includes all those activities which facilitates means which helps the trade or which helps the trade. Which helps the trade means goods तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए, लेकिन कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेंगे वो जो गैप कौन रिड्यूस करता है? कॉमर्स. कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती है जिसके द्वारा ट्रेड पॉसिबल होता है. ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. मतलब एक तरीके से ये हेल्प करता है ट्रेड को. ठीक है, इट बूस्ट ऑफ द ट्रेड. The industry further classified into three types: primary industry, secondary industry and tertiary industry. Primary industry, secondary industry and tertiary industry. Industries का further classification किया गया है. Primary industries का मतलब क्या होता है? Primary industries वो industries होती है जो natural resources को use करके प्रोडक्शन करती है. कुछ या तो प्लांट्स एंड एनिमल्स का फर्दर ईदर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे फिशिंग है, माइनिंग इंडस्ट्रीज है, ऑल दिस यूज व्हाट? नेचुरल रिसोर्सेज. और ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब प्लांट्स, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब प्लांट्स एंड मेनी एनिमल्स का फर्दर रिप्रोडक्शन करना. ठीक है, तो इट इज known as primary industry. So एक short word में मैं बोलूँ primary industry which uses what? Natural resources. Primary industries are those industries which uses what? Natural resources. क्या use करते हैं ये लोग? Natural resources use करते हैं as their basic raw material. Okay? जैसे mining industry है आपकी, फिशिंग इंडस्ट्री है आपकी, ये सारी क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री. ठीक है. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ भी प्राइमरी इंडस्ट्री का फाइनल गुड है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का अंदर एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और फर्दर उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग ऑफ आयरन ओर. आयरन ओर आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आयरन माइनिंग के द्वारा वो एक्सट्रैक्टेड व्हाट? आयरन ओर. नाउ दिस आयरन ओर इज व्हाट? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री. अब सेकेंडरी के अंदर आप आयरन ओर को यूज करके और फर्दर आयरन ओर को प्रोसेस करके आप स्टील मैन्युफैक्चर करते हो. तो स्टील यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? सी वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, यू डोंट गेट कंफ्यूज. इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर. ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिक रॉ मटेरियल की तरह यूज करके प्रोडक्शन कैरी करती है. ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एक्सट्रैक्टिव के अंदर और जेनेटिक के अंदर. प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाई किया है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक के अंदर. एक्सट्रैक्टिव किससे बना है वर्ड? एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट करना किसी भी चीज से, मतलब कोई चीज है आप उसके अंदर से कुछ क्या कर रहे हो?
माइनिंग इंडस्ट्री है ना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, देन फिशिंग, ऑल दिस इज व्हाट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। इट इज यूजिंग व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके हो रहा है। लंबरिंग लकड़ी से रिलेटेड है कि वुड कट करना। सो ऑल दिस आर व्हाट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मींस व्हाट, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का फर्दर रिप्रोडक्शन कैरी ऑन किया जाता है। नर्सरी वगैरह होती है, देखो नर्सरी के अंदर आपको अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। तो हियर ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज देयर। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री का अंदर क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल क्या होता है, सेकेंडरी के इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्री का जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर और फर्दर उसको प्रोसेस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल iron ore which is extracted through the process of mining, वो किसमें आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट किया है आयरन ore। तो आयरन ore is a finished product of extractive industry primary industry। उसी आयरन ore को यहाँ पर यूज किया जाता है और स्टील मैन्युफैक्चर किया जाता है, दैट इज फॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री। स्टील is what secondary industry के अंदर आएगा। So iron ore, extracting of iron ore is what extractive। iron ore को further process करके आप जब steel manufacture करते हो, that comes in where secondary industry। Secondary industries are further classified into manufacturing and construction। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स एंड डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना, ये सब किसके अंदर आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। दिस इंक्लूड्स द इंडस्ट्रीज वेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स वगैरह, कैनल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करना ही कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करना, समथिंग टू मैन्युफैक्चर। दिस इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, दैट वी विल डू इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज जस्ट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। Then you have what, tertiary industry। tertiary industries के अंदर क्या होता है, tertiary industries are help, ये helping industries है, ये क्या है, helping industries है। ये कॉमर्स की तरह ही क्या करती है, ट्रेड को सपोर्ट करती है। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड everything which facilitates the trade, which helps the trade। Again we come to our commerce part। commerce के अंदर हम लोगों को पता है कि commerce is divided into trade and auxiliaries to trade। trade मतलब क्या, trade व्यापार मतलब buying and selling of goods and services is known as what, trade। trade का मतलब क्या होता है, buying and selling of goods and services, व्यापार करना, खरीदना और बेचना, that is what trade। ट्रेड भी दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनल ट्रेड होता है और एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है। The trade which is conducted within the political boundaries of a country is known as internal trade। साफ शब्दों में अगर कहा जाए, वो व्यापार जो इंडिया के अंदर जो भी व्यापार होता है, जो भी ट्रेड होता है, उसे इंटरनल ट्रेड कहेंगे। मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड आप करोगे दैट इज इंटरनल ट्रेड। लेकिन इसे डिफाइन करना पड़ेगा। द ट्रेड व्हिच इज कंडक्टेड विद इन द
encounters with other countries. जो दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इन होलसेल एंड रिटेल. Wholesale trade means the trading of goods and services are done in bulk and in one type of product. Wholesale trade, wholesaler क्या करता है, एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट में मोस्टली डील करते हैं और बल्क में डील करते हैं. Retailer is generally keeps every type of product but in small quantities. And external trade या international trade is further divided into import, export and interport. I think you know the meaning of import and export. You have studied the meaning of import and export. जब भी हम दूसरे देशों से चीजें खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, that it is known as import. और दूसरे देशों को अगर हम गुड्स बेचते हैं, that is known as export. थर्ड टाइप क्या है, इंटरपोर्ट. इंटरपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या होता है, फर्स्ट वी इंपोर्ट द गुड्स, do certain processing in our own country and then re-export it to some other country. For example, मैंने कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ओके, मेरी क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो कुछ कंपोनेंट पार्ट्स मैंने अमेरिका से क्या किया है, कार के लिए इंपोर्ट किए हैं. अब उनका क्या करूंगी, फर्दर प्रोसेस किया, कार बना ली. अब उसको अगर मैं दूसरे देश को एक्सपोर्ट करती हूँ, बेचती हूँ, तो इस तरीके के ट्रेड को क्या कहा जाता है, इंटरपोर्ट. पहले हम किसी और देश से इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल, उसका प्रोसेसिंग करेंगे और फर्दर इसका री एक्सपोर्ट करेंगे. दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड. Okay, now see here, commerce was divided into trade and auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade means those auxiliaries means which helps the trade. वो activities जो trade को क्या करती है, help करती है. इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कॉमर्स एक तरीके से ट्रेड के अंदर जो भी हिंड्रेंसेस होते हैं, वो सारी हिंड्रेंसेस, वो सारी रुकावटें खत्म कर देता है. कॉमर्स क्या करता है, देखो यहाँ पर तो प्रोडक्शन वर्क हो गया, यहाँ पर कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, दैट वर्क इज डन बाय द कॉमर्स. इट रिमूव्स ऑल टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस. हिंड्रेंसेस मींस सारी रुकावटें दूर की जाती है, इसके द्वारा, कॉमर्स के द्वारा. कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन कौन से रुकावट को दूर करता है, प्लेस, है ना. गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट इट इज मेड अवेलेबल थ्रूआउट द कंट्री, है ना, नॉट ओनली कंट्री बट द आउटसाइड वर्ल्ड आल्सो. प्रोडक्शन एक जगह होता है लेकिन गुड्स कंज्यूमर को हर जगह पर उपलब्ध कराया जाता है. दैट मींस प्लेस की रुकावट कौन दूर करता है, ट्रांसपोर्टेशन. स्टोरेज प्रॉब्लम इज लुक्ड आफ्टर व्हाट, बाय वेयरहाउसेस. ओके. इंश्योरेंस, गुड्स को डैमेजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस है. बैंकिंग एंड फाइनेंस आर देयर टू प्रोवाइड यू कैपिटल for your business. Advertising are there to promote your goods and services. आपके goods and services को promote करने के लिए advertising है. So ये सारी चीजें क्या करती है, ट्रेड को मदद करती है. और ट्रेड होने में जो भी रुकावटें होती है, वो सारी hindrances, वो सारी रुकावटें कॉमर्स के द्वारा दूर की जाती है. Okay. So today we have studied the classification of business activity. Business को basically two types में divide किया गया, industry and commerce. Industry is a place where goods are manufactured, जहाँ पर raw material को
फिनिश गुड्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इंडस्ट्रीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. Primary industries are those industries which uses natural resources as their basic raw material, and it is further classified extractive and genetic industry. Okay, and secondary industries are those industries which uses raw material. कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं ये, जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री का फाइनल गुड्स होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट्स द ट्रेड और व्हिच helps the trade. Trade means what? Trade means buying and selling of goods and services. Goods and services को खरीदना और बेचना. Trade is divided into two types, internal and external. National and international भी बोल सकते हैं हम लोग. National trade can be wholesale or retail. External trade is classified as import, export and interport trade. Okay, and auxiliaries to trade includes all these activities. ये सिर्फ आपको briefly introduce किया गया है. Next video के अंदर हम detail के अंदर पढ़ेंगे industry and its types के बारे में और हर एक point को deeply आप लोगों को explain किया जाएगा. Okay, today just a brief overview दिया गया है classification of business activity. Next video we will learn in detail about the industry and its type. Okay, hereby I conclude my lecture. Thank you.